ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो सुबह आईने में खुद को देख के बोलते हैं यार मुझसे नहीं होगा, मैं करूंगा कैसे। टुडे वी विल रिवर्स दैट सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ फॉर एवर। हमारे देश में हम इंडियंस का एक फेवरेट डाउट है, लोग क्या कहेंगे। हमारा कलेक्टिविस्ट कल्चर है, सोसाइटी एंड कम्युनिटी इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स एनकोडेड इन आवर डीएनए। याद रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का, लोग क्या कहेंगे मेनिंजाइटिस। हाउ मेनी टाइम्स, बी ऑनेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू woken up in the middle of the night क्योंकि आपको कुछ बहुत embarrassing moment याद आ गया हो कई सालों पुराने का। How many times have you not made that phone call just because the fear has taken control over you? We are all a little bit of an idiot, each one of us, and that is what makes us human. Even me. हर इंसान कभी ना कभी बेवकूफी करता है। ये मैं नहीं कहता, 16th सेंचुरी फिलोसोफर इरास्मस, उनका कहना था हर व्यक्ति की तरह हर व्यक्ति में एक बेवकूफ होता है। सुन के अगर बुरा लगेगा तो यू शुडंट फील सो बैड अबाउट इट बिकॉज दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स अस ह्यूमन। आप नॉर्मल, दैट मेक्स अस नॉर्मल। And here is the beautiful part. Have you noticed that the most confident people amongst us are stand-up comedians? Stand-up comedians are so confident because वो exactly इस डर को overcome कर चुके होते हैं। They are no longer afraid of being laughed at. In fact, they make a sport out of it. That is their bread and butter. वो इतना confident हो गए होते हैं that their ego has dissolved. What is holding you back from being confident and from saying what you need to say? जो conversation आप करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो जो आपके अंदर डर है, वो डर आपकी ego. The ego is the root of it. And when you overcome the ego, and when the ego dissolves, and when the ego learns that the fear is overrated, it starts to automatically dissipate. When nothing remains, the only thing is clarity. और ये जिन लोगों के बारे में हम इतना सोचते हैं, जिन लोगों से हम इतना डर रहे हैं, क्या वो रात को सोने से पहले सिर्फ आपकी बेइज्जती के बारे में सोचते होंगे? बिल्कुल नहीं। सबको अपनी पड़ी है, हर कोई अपनी लाइफ के परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि किसी के पास फुल टाइम आपको जज करने के लिए नहीं है। Is this not liberating? तो आज से थोड़ा भाड़ में के एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। लेट्स अडॉप्ट दैट। It's not arrogance, but the quiet realization that most people frankly do not care enough to judge you constantly. And those who still judge, उनकी लाइफ में शायद कुछ मसाला कम है, इसीलिए दूसरों की लाइफ में मिर्च लगाने के लिए रेडी रहते हैं। Why give such people power over your own dreams? Life is too short to allow such people and their judgments to come in your way. मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, and I kid you not, scroll down, you will see मेरे पुराने के वीडियोस कैसे हैं। मेरे से कैमरा के आगे हिंदी नहीं बोली जाती थी। Amount of marks. Why not just focus on the core content? Why not give the examiner what they want exactly? जब मैं वीडियो बनाता था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर करके देखता था, पूरी शर्ट गीली हो जाती थी मेरे पीछे से। I used to just sweat bullets because I just was not confident enough and I was so paranoid about how I had appeared. From there to making videos on a regular basis like this without breaking a sweat is a long leap. But there were things before that that prepared me. एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और ये बिल्कुल सच है एकदम। It is true to the T. I was in the IRS and there is a post in the IRS जहाँ पे आपको कोर्ट में, एक कोर्ट ऑफ लॉ में केसेस आर्ग्यू करने होते हैं लॉयर की तरह, इवन इफ यू आर नॉट अ लॉयर। स्पेशल कोर्ट्स होते हैं फॉर टैक्सेशन केसेस एंड आई वाज वन ऑफ दोज पीपल, essentially a public prosecutor, you might say. So as a public prosecutor, you have to argue in front of a judge in a courtroom which is full. That is not a happy crowd. That is not an easy crowd. They are not standing there to applaud. They are there to find mistakes. And the judge is trying to find mistakes. जो आपका opponent है वो एक seasoned lawyer है, उसके सामने, and this again is something which is coming from experience which I have not shared before. जब मैं उस पोस्टिंग में गया तो एक दो दिन तो मैं कोर्ट गया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। पीछे बैठे हुए ना पता नहीं चलता है कि सामने जब जाते हो आप आर्ग्यू करने के लिए, और जब आपको लगता है you can feel the eyes of hundreds of, you can feel the eyes of many people behind you, you can feel many dozens of eyeballs staring at you, आपके पीछे के कान खड़े हो जाते हैं। You will feel the hair rise on your hands because that is how we are wired. I was not ready for this. First time केस हुआ, मैंने 50 बारी फाइल पढ़ी, मैंने उसके पॉइंट्स लिखे, मुझे पता था सामने से क्या आर्ग्यूमेंट आएगी, मुझे बोलना क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। अगर मैं उस दिन कोर्ट में डर के मारे चला जाता तो सोचो कितनी बेइज्जती होती। लोग सोचते कि गवर्नमेंट की बेइज्जती हो गई है। दैट वॉज द वेट ऑन माई शोल्डर्स एट दैट टाइम। और जो थोड़ी बहुत इज्जत आज बनाई है लाइफ, वो शायद नहीं बनती। तो डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं है, जिंदगी की रियलिटी है। Let us talk about the psychology of fear and what's really happening behind the eyeballs in your brain. Neuroscience tells us कि जब भी हम किसी नई, स्केरी
नॉवल चीज के पास जाते हैं तो दिमाग का एक छोटा सा पार्ट अमिगडाला डेंजर सिग्नल भेजना स्टार्ट करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ में पसीने आने लगते हैं, दिमाग तेज तेज भागने लगता है और दिल धड़कने लगता है इतना तेज कि माइक के सामने खड़े हो तो ऐसा लगता है कि माइक आपकी हार्ट बीट पकड़ लेगा। Because all you can hear is your heart banging in your ears. That is your sympathetic nervous system taking over. That is the evolutionary response to fear, to fight or flight, which is telling you, your brain is telling you कि आपके आसपास कोई मॉर्टल, कोई एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल आपकी जान को खतरा है। आपकी जब जान को खतरा डिटेक्ट करता है ब्रेन, तो आपके पूरी की पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। दैट रिस्पॉन्स इज व्हाट इज ट्रांसलेटिंग टू स्टेज फियर, इट इज व्हाट इज ट्रांसलेटिंग टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज व्हाट इज ट्रांसलेटिंग टू यू नॉट मेकिंग दैट कॉल, यू नॉट अपलोडिंग दैट वीडियो, यू नॉट डूइंग व्हाट यू नीड टू डू। दैट फियर इज अनफाउंडेड। आज की डेट में कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे सामने नहीं है। जब हम किसी भी सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इसीलिए स्टार्ट होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज वाइल वी वर इवॉल्विंग हिस्टोरिकली, ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाना, आउटकास्ट हो जाना, सोशली आउटकास्ट हो जाना was a death sentence at some point, so therefore it is wired inside us and we feel that. So अगर आपको वो terrifying fear feel होता है लोगों के सामने embarrass होने का या आउटकास्ट होने का, तो that is your brain working properly. But, and this is a big but, हमारा दिमाग एक पुरानी Windows 95 सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। This fight or flight response in front of people is no longer required. आज के ज़माने में स्टेज पे बोलना, नया बिजनेस रिस्क लेना, क्रिएटर इकोनॉमी में नए वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना, ये चीज़ें लाइफ और डेथ नहीं है। ब्रेन को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट होगा कैसे? एक्शन का एंटीवायरस चलाने से। रिसर्च प्रूफ देती है, स्टडीज दिखाती हैं कि अगर आप बार बार उसी नई या स्केरी चीज़ में जाते हो, पहले डर लगेगा, धीरे धीरे अमिगडाला का पैनिक रिस्पॉन्स कम होने लगेगा, ब्रेन को समझ आ जाएगा यहाँ पर कोई लाइफ को खतरा नहीं है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। जब सीरियस फोबियाज होते हैं लोगों को, साइकोलॉजिस्ट डिप्लॉय पीरियोडिक एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, और उस जिस चीज से फोबिया होता है धीरे धीरे उसको एक्सपोज कर करके लोगों का डर हटाया जाता है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आवर ब्रेन, इट इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल, इट इज नॉट वायर्ड फॉर सक्सेस। सर्वाइवल मोड का मतलब है रिस्क से बचना। इसीलिए जब तक आप नए काम को कर नहीं दिखाते, दिमाग कॉन्फिडेंस का स्विच ऑन नहीं करेगा। वो पहले प्रूफ मांगेगा। योर ब्रेन विल आस्क यू, पहले दिखाओ तो सही कि कोई लाइफ का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, एंड इफ इट इज ऑल ओके, तो आपको उसको एविडेंस देना पड़ेगा एक्शन के फॉर्म में। समझो, आप सोच रहे हो कि मुझे स्टेज फियर है, आपने कभी स्टेज पे बोला ही नहीं है, तो आपका ब्रेन बोलेगा रिस्की है, अवॉइड करो। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट इट विल डू, इट्स व्हाट इट इज डिजाइन टू डू। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है। जैसे ही आप एक दो बार स्टेज पे बोलना स्टार्ट करोगे, दिमाग बोलेगा इट इज नॉट सो बैड, ये तो हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक्चुअली इज योर ब्रेन सेइंग दैट आई नाउ हैव एविडेंस टू डू दिस। साइकिलिंग याद है आपको? आपने एक पॉइंट पर साइकिल चलानी सीखी होगी, कितना डर लगता था उस टाइम पर, एंड यू न्यू दैट यू वुड फॉल एंड यू डिड फॉल, एंड बट नाउ आपके दिमाग की प्रोसीजरल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है that you don't even think about it. It has been automated. This is precisely the way confidence works. Confidence बनता है, you build it like muscle. There is no magic sauce behind it. यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। This is a skill. स्किल जो ट्रेन किया जा सकता है, एंड द वे टू बिल्ड इट इज रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। इफ यू वांट एनी प्रूफ, लुक एट तेंदुलकर, लुक एट विराट कोहली, एनीबडी हु इज ऑब्सेसिवली डूइंग नेट प्रैक्टिस, लुक एट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। He is absolutely ruthless in his training and his practice, and therefore when he is on the field, when he is on the pitch, he is effortless. Problem ये है कि हमसे बहुत लोग फेलियर के डर के मारे स्टार्ट ही नहीं करते। We don't even try. यार मेरा होगा नहीं, you're not confident enough. Confidence ऐसा ही तो बनेगा। Persistence is the secret ingredient behind confidence. Confidence is just hidden persistence actually. हर फेलियर के बाद जो बंदा दोबारा उठ के कोशिश करता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ी और हिम्मत आ जाती है, एंड दिस लूप कंटिन्यूज। रियलिटी चेक। मूड को फॉलो करने के बजाय अपने प्लान को फॉलो करो। वर्क फर्स्ट, कॉन्फिडेंस लेटर, पीरियड। एक और चीज नोटिस करी आपने, जब हम कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, शुरू में थोड़ा सा यू हैव टू सक अ लिटिल बिट, यू नो, व्हेन इन द आर्मी दे से एम्ब्रेस द सक, इट्स अनअवॉइडेबल। अब चाहे कितनी भी इंटेलिजेंस आप में क्यों ना हो, पहले दिन कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। इसी इम्परफेक्शन के डर से हम शुरुआत नहीं करते। ये परफेक्शनिज्म इज बेसिकली फैंसी प्रोक्रेस्टिनेशन। शुरू में बेकार होंगे, थोड़ा बुरा लगेगा, लोग शायद हंसेंगे, बट मास्टरी के पहला चैप्टर हमेशा आई सक एट दिस ही होता है, नो एक्सेप्शंस। तो खुद को एक परमिशन देनी जरूरी है। खुद को एक परमिशन दो कि मैं शुरू में अच्छा नहीं हूंगा, बट दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट विल स्टार्ट। डन इज बेटर देन परफेक्ट। आपको अपनी एक और एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम माय यूपीएससी जर्नी। जो मेरा पहला यूपीएससी इंटरव्यू था, इट वाज हॉरिबल। I did clear the exam, but it was horrible. I walked into the interview and the chairperson looked at me and he said, Mr. Kapoor, you look like a model. Why don't you go and walk on the ramp?
ये उन्होंने मुझे बोला पॉइंट ब्लैंक, और मजाक में कह रहे थे, ऐसा कुछ उनका, ही वाज नॉट इंटेंडिंग टू थ्रो मी ऑफ बैलेंस. इफ एनीथिंग आई थिंक ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, आइस ब्रेकिंग व्हाट ही वाज डूइंग. बट आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, एंड आई fumbled. उसके बाद I fumbled to the point that I could never regain my confidence in that interview. 50 marks were lost at least unnecessarily. 50 नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए यूपीएससी की तैयारी में, मेंस के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो मैंने 6 सेकंड में खोए थे. Because I was not ready, I was not confident. And you know why I was not ready? Because I had not done the practice. Truth be told, the practice wasn't there. The practice wasn't there because I did not know what sort of practice had to be done, because I did not have the guidance. Whatever the justification is, the point is, had I been practicing, had I gone to a lot of mock interviews, had I been doing oration, had I been outputting language like I do these days, it would have gone a lot better. I would have said something smart. I would have said something at least not foolish. I would have said, sir, it's my pleasure to perhaps do both. I don't know what I would have said, but I would have tried. अब एक और थोड़ा सा सीक्रेट वेपन बताता हूं आपको. अपनी जीतों को काउंट करो. दैट वन बेबी स्टेप दैट यू टुक, काउंट दैट इज रिवॉर्ड, दैट इज गुड, यू डिड समथिंग पावरफुल. हमारा दिमाग नेगेटिव बायस की एक फैक्ट्री है. बुरा ज्यादा याद रहता है, अच्छा भूल जाते हैं. इसको काउंटर करना होगा. ट्रैक योर विंस. अपने छोटे से छोटे अचीवमेंट को लिखो और उसको सेलिब्रेट करो. व्हाई? ताकि जो भी डाउट आने लगे, आपके पास खुद लिखा हुआ सबूत हो दैट दिस इज अ फॉल्स self-defeating belief. I have evidence to show it. Confidence is built on data, not from dopamine. A random feel-good hormone, which is dopamine, उसके भरोसे नहीं रहना है हमको. Hard facts अपने फेवर में होने चाहिए, and that comes with action, of course. For instance, एक डायरी रखो आप, जिसमें रोज at the end of the day write 3 things that you are grateful for. Write 3 things that you are proud of doing. That difficult phone call that you have been avoiding, write that down when you do it. जब आप लिखते हो और देखते हो कि एक हफ्ते में 5 या 6 अच्छे चेक मार्क्स हैं, खुद पक्का हो जाता है कि प्रोग्रेस हो रहा है. आपके दिमाग को एविडेंस मिलता है, उसके इमोशनल डाउट्स को ओवरराइड करने में हेल्प मिलती है. तो कॉन्फिडेंस इज लेजिटिमेट, तो कॉन्फिडेंस इज वारंटेड, लेट इट कम. मैं खुद ये करता हूं. जब कभी भी आई एम फीलिंग लो, आई ऑलवेज मेंटेन अ डायरी. उसमें बाद में छोटे छोटे मोमेंट्स, व्हेन आई लुक थ्रू इट, आई रियलाइज हाउ मच प्रोग्रेस हैज बीन मेड, एंड एवरी टाइम आई डू इट, द प्रोग्रेस इज स्टैगरिंग. एंड इट इज नॉट ओनली स्टैगरिंग बिकॉज आई फील इट, द प्रोग्रेस इज ट्रूली स्टैगरिंग. बट माई ब्रेन डज नॉट एक्सेप्ट दैट एट टाइम्स. ये कोई ईगो ट्रिप नहीं है, ये अपने आप को फेयर क्रेडिट दिया है आपने आफ्टर हार्ड वर्क. और हाँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो. जो बातें आप खुद के मन में खुद से बोल रहे हो, दैट साइलेंट कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग विद योरसेल्फ, वो बाहर के 100 लोगों की बातों से ज्यादा इंपैक्ट कर रही है आपको. अगर आप ही अपने दुश्मन बन जाओगे, बाकी दुनिया कोई हेल्प नहीं कर पाएगी आपकी. मोहम्मद अली, फॉर इंस्टेंस, द लेजेंडरी बॉक्सर, रोज खुद को उठ के कहते थे दैट ही इज द ग्रेटेस्ट. ही यूज्ड टू कीप सेल्फ रीइंफोर्सिंग दिस ऑब्सेसिवली. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया को सुबह उठ के बोलो कि आई एम द ग्रेटेस्ट. आप हम्बल रहो, पर अंदर से खुद को रिस्पेक्ट करो. अपने आप को कहो आई हैव गॉट दिस. चाहे सिचुएशन जितनी भी टफ हो, खुद पे विश्वास करोगे, दुनिया विश्वास करना स्टार्ट कर देगी. एक और चीज सीखी मैंने, अपने सराउंडिंग सुधारो. जब आसपास टॉक्सिक लोग होते हैं, जब लोग सिर्फ निंदा करते हैं, ताने मारते हैं, उनको थोड़ा साइड करो. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अलग बात होती है, पर कुछ लोग हैबिचुअली कॉन्फिडेंस वैम्पायर्स होते हैं. आपकी हर एक खुशी, हर प्रोग्रेस को चूसना चाहते हैं. ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंपैशन. इट इज योर ड्यूटी टू स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल. इंस्टेड उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको कुछ इंकरेज करें, खुद ग्रोथ करना चाहें. एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहने से कॉन्फिडेंस को ऑक्सीजन मिलती है. कैमरा ऑन होने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, नए वेंचर शुरू करने से पहले डर हमेशा साथ होता है. मैं उनको बोलता हूँ, आ जाओ देखते हैं. आई हैव सीन यू बिफोर, यू आर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. आई हैव नेवर बीन अफ्रेड ऑफ यू, व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ यू नाउ. हर बार जब मैं एक्शन लेता हूँ, फियर पीछे मेरे साथ चलता है. हर बार मुझे लगता है, यू क्विट द IRS, आर यू गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, व्हाट आर पीपल थिंकिंग अबाउट यू. आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स दैट कम टू माई हेड, बट आई नो आई हैव डन दिस बिफोर, and I know I will reach where I want to reach. And even if it is a mistake, I don't care. Who is the judge of this being a mistake or not? Who exactly is sitting on judgment? Nobody. Nobody. It is a mistake if I think about it as a mistake for too long. As long as I am happy, there is no mistake. It is a life well lived. And a life well lived is a life lived with some passion. That is my belief. And that is where the confidence to make such videos comes from. आपको अपने अंदर ये ढूंढना होगा. You will have to extract it out from inside your core. In that process, I must also issue a warning. आपको arrogant नहीं होना है. There are 6 pillars of life. उन 6 pillars पे इंडिया के टॉप मेंटर्स और मैंने मिलके आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट हम देना चाहते हैं. हमारा मंत्र है
ग्रोथ हैज नो फिनिश लाइन, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, और ये सब मुफ्त है। द सिलेबस ऑफ लाइफ एकेडमी इज फ्री। अगर आपको लगता है कि बातें क्लिक करी हैं दिल में, इफ समथिंग हैज स्पार्क्ड इनसाइड यू, जॉइन द एकेडमी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां आपको और कंटेंट मिलेगा, वी विल गो डीपर और वी विल गो पर्सनलाइज इनटू योर जर्नी। नाउ फॉर द फाइनल चैलेंज। वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ के जाऊंगा। अगले 24 घंटे में आप एक काम ऐसा करोगे जिससे आपको डर लगता है। यू विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई भी काम, छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैज टू बी वन थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। वो चीज जिसको सोच के आपके अंदर गुदगुदी जैसा डर पैदा हो जाता है, उसको पकड़ के खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको माफी मांगनी है लेकिन ईगो या डर की वजह से नहीं मांग पा रहे हो, जाके माफी मांगो। बॉस से सैलरी की बात करनी है, कर नहीं पा रहे हो, अगली मीटिंग में यू रेज दैट पॉइंट। जिम ज्वाइन करना है पर शर्म आ रही है, गो ऑनलाइन, फिल द फॉर्म एंड गो टू द जिम। सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए यू आर नॉट अपलोडिंग दैट पीस ऑफ कंटेंट, यू विल पोस्ट इट टुडे एंड यू विल टैग मी and you will let me know that you have done it. Pick one action and you will do it within 24 hours of watching this video. फिर देखो, करते वक्त हाथ पैर कांपेंगे शायद, पर लेकिन जो सुकून मिलेगा ना, it will be the start of something, and if you get addicted to that, there is no stopping you. That is the best type of addiction you can ever have. That is my wish upon you. मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए what you have found, whether you have done that challenge or not. I would like to see it happen. I would like you tag me. I would like you make it public, because that helps and that boosts your confidence, and that is one of those things, like I always say, it is a cardinal rule of the community that we are building in the syllabus of life, to be supportive. And because all of us are fallible, all of us are flawed, all of us require confidence, all of us are a little bit of an idiot, including me, and there is no harm in admitting that, which is the root of all confidence. And if that is the type of confidence you are getting, then it is the best kind. Thank you.